أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 2 میں آج ہم صفحہ 2 کا اشارہ بھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم اپنا صفحہ 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے ہم 4 اشارے پڑھ چکے ہیں۔ کل سے ہم نے اپنا صفحہ 2 سٹارٹ کیا ہے اور اس کا بھی ہم ایک اشارہ پڑھ چکے ہیں، اشارہ اے۔ آج ہم اشارہ بی پڑھیں گے۔ آپ سب بہت مبارکباد آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب پر اپنے رحمت نازل کرے، اللہ آپ سب کی مدد کرے اور آپ کے شوق کو اور مزید بڑھائے۔ تو آپ لوگوں نے کل کی جو کلاس تھی اس کے میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگا، جن لوگوں نے کلاس نہیں لی تھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اور کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس مس کر دیتے ہیں یا ہمیں کلاس سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھا کریں اس کو تاکہ آپ کو مزید اچھا سمجھ۔ شاید نے دیکھی ہے شاید۔ ہم کورس 2 پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں۔ ان 5 صفحات میں سب سے جو پہلا پیج اس پہ سورہ فاتحہ اور البقرہ کی کچھ آیات ہم نے پڑھی۔ اس کے جو باقی جو مضمون ہے، یہ پانچوں پیج کے جو مضمون ہے جو ہم نے پڑھنے ہیں، مزید ہدایت کی بات ہے۔ اس میں متقین کا گروہ ہے، کافرین، منافقین، اور اس کے بعد پھر دعوت قرآن ہے، پھر اس کے بعد 5 پیج ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی۔ ان ہم 5 صفحات کو، اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے پیش کریں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہم اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں۔ جو پہلا پیج ہمارے تھم پر آتا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا پیج 2 فنگر پہ، پھر چوتھا اور 5واں پیج 2 فنگر پہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اشارے جو ہے اپنے اس کے اوپر رکھتے ہیں اور ہم اشارے ہم پڑھنے کی، یاد کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا پیج تھا، پیج 1، اس کے جو 4 اشارے تھے وہ تھے سب تھم کے اوپر تھے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ الحمدللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی جو شارٹ اشارے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جب میں ایسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، آپ لوگ بھی اپنا ہاتھ ایسے رکھا کریں، آپ لوگ بھی ساتھ پڑھا کریں، اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو سنوایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اشارے یاد ہوں۔ تو ہمارے تھم کے جو اشارے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ اب ہمارے پاس یہ دوسرا صفحہ ہے۔ دوسرا صفحہ کیا، ہم نے 4 اشارے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخ، یعنی 4 اشارے ہیں۔ ان چاروں کو ہم نے اس والے پیج پہ ہم نے پڑھا۔ اس میں سے ہم ایک اشارہ کافرین کو ہدایت نہیں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کے اشارے بھی اپنے فنگر پہ دیکھ لیتے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخ۔ چلیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے مس علینا آپ پڑھیے پہلے، اور سب لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ میں باری باری سب کو۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ ہے۔ ویری مس نگت آپ پڑھیے۔ میں منروے میں جس کلاس اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ اوکے، اسپیشل آپ پڑھیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ ویری گڈ، مس شاہدہ فاروق آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیے اب اس کو شارٹ اشارے مس آمنہ آپ پڑھیے شارٹ اشارے۔ آپ لوگ جلدی اپنے انمیوٹ کیا کیجیے۔ مس آمنہ عروج، مس مریم آصف، مس کشف آپ پڑھیے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ مس شاہدہ آپ پڑھیے۔
काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो भी अपने हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आमना रुजा पढ़िए। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। माशाल्लाह, ये हमारे 4 इशारे हैं, शॉर्ट इशारे। अब हम आते हैं जो हमने आज का इशारा है, मुनाफिकीन को हिदायत दी। तो इससे पहले हमने जो पिछली आयत के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इससे पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसमें कि वो जिन्होंने कुफर किया है, आप उन्हें बेशक डराएं या ना डराएं, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों की मोहर लगा दी है, उनके कानों की मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पर पर्दा है, वो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो ये पिछली आयतों में हमने बात की थी। और अब हम मुनाफिकीन को हिदायत, पिछली आयतों में काफिरीन की बात हुई थी और अब मुनाफिकीन की बात होगी। और इसके हम असबाब देखते हैं। मुनाफिक कौन होते हैं? मुनाफिकों का बर्ताव बिल्कुल मोमिनों ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। यानी ऊपर से तो वो ऐसे यानी कि कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन जो अंदर से वो बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ नहीं होते, बल्कि उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके अपोजिट बातें करते हैं, वो अपने ही दीन पर होते हैं। तो लेकिन यह है कि वो धोखा देते हैं, छुप छुप के ऐसे किस्म का लबादा ओढ़ लेते हैं उनका का, और उससे फिर धोखा देते हैं। वो क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है, ठीक है, बीमारी होती है, मर्ज होता है। मुनाफिकों की दुनिया में क्या सजा है? मर्ज में ज्यादती। अल्लाह ताला मर्ज में ज्यादती करता है, और आखिरत में सजा है दर्दनाक अज़ाब। अब हम देखें कि कुरान कितना आसान है कि हमें पहली लाइन में से सिर्फ एक अल्फाज है जो हमने सीखना है, बाकी हमें सारे आते हैं। दूसरी लाइन में 3 अल्फाज हैं, फिर तीसरी में 3 है, फिर आखिरी वाली लाइन में 2 अल्फाज है। तो इतना आसान है कि हम यानी कि इसको सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसको जरा आप लोग सब लोग अलर्ट हो जाए, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज देखते हैं पहले, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए वाह का क्या मतलब है? और मिन, मिन का क्या? से ओके। अन्नास, से अन्नास, लोगों, इंसानों, लोगों। लोगों, ठीक है। तो अब क्या बन गया? वामिन नास, वामिन नास, और लोगों से, और लोगों में से, ठीक है। से मन, मन का क्या मतलब? कौन, कौन और भी मतलब पढ़ा था हमने। जो भी आता है, जो भी। हाँ, जो, यहाँ पर इसका मतलब होगा जो, ठीक है। आगे है यकूलू, यकूलू हमने काला का टेबल पढ़ा था ना, काला यकूलू, जी, क्या मतलब है? कहते कहते हैं, वो कहते होंगे, वो कहते हैं, कहता है, कहते हैं, वो कहता है। वो कहते हैं, ठीक है। आमन्ना, आमन्ना, ये कौन सा वर्ड हो सकता है? कौन सा फेल हो सकता है? माजी या मुजारे? इसकी कंस्ट्रक्शन ये तो माजी होगा ना। जी बिल्कुल माजी है। आमन्ना अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। आमन्ना यह है माजी का, ठीक है। माजी, इसका इशारा कैसे होगा? आमन्ना, हाँ, अपने ऊपर आएगा ना, हम पर, हम, ये प्लूरल में। वाला इशारा, ठीक है, हम वाला इशारा होगा अपनी चारों उंगली सर की तरफ, ठीक है। आमन्ना बिल्लाही, कितने टुकड़े होंगे बिल्लाही के? दो बिल्लाही, ठीक है, बिल्लाही 2 टुकड़े। बिल्लाही क्या मतलब होगा? अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह पर, से, अल्लाह पर, अल्लाह की। अल्लाह पर होगा इसको, क्योंकि ये हरीफ जर जो भी है ना, इसका मीनिंग जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखें हमें ये सब आ ही जा रहा है ना। वाह आगे हमने पढ़ लिया, वाह हर्फ है, और वाह का मतलब और है बेयौम, बेयौमिल आखिर, इसका क्या मतलब होगा? और योम पर, यौम यानी दिन दिन, पर ना, दिन यानी आखिरत के दिन पर। आखिरत के आखिरत दिन के पर। दिन पर। वेरी गुड, आखिरत के दिन पर, यानी कि क्या? और माँ जो हम वो सब बिमोमिनीन, मोमिनीन से। बिल्कुल, ये मोमिन से। अब इसका देखें, हम इसका तर्जमा करने की अगर हम कोशिश करें, वामिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू अमन्ना बिल्लाह है, जो कहते जो हैं, ये कहते हैं हम ईमान लाए हैं अल्लाह पे, अभी यौमिल आखिरी, और आखिरत आखिरत के पर, दिन पर, और और वो सब मोमिनीन में से है, और आखिरत के दिन पर, बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमोमिनीन, वाह, अच्छा यहाँ पर माँ का क्या मतलब होगा?
जो जो और जो नहीं नहीं यहाँ नहीं मतलब आएगा और जी नहीं, और नहीं वो, वो सब वो मोमिनी, सब और में नहीं वो से सब मोमिनी, और नहीं वो सब ईमान लाने वाले, या नहीं वो सब मोमिन में से। ईमान वाले। वेरी गुड। इस तरीके से हम देखें, टुकड़े कर करके हम इसका तर्जमा कर सकते हैं। युखादिऊन अल्लाह। अब युखादिऊन, ये कौन सा आपको फेल लग रहा है, माजी या मुजारे? मुजारे मुजारे ये मुजारे मुदारे लग रहा है या की वजह से। या की वजह से मुजारे लग रहा है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह के ऊपर जबर है तो ये क्या बनेगा, मफऊल। ठीक है ना। तो युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, यहाँ पर अल्लाह का मफऊल है तो ये को बनेगा। वल्लाजीना, वल्लाजीना इसका क्या मतलब होगा? और और लोगों और लोगों वा और अल्लजीना वो लोग, वो लोग, ठीक है। लोगों की और जमा है। लोगों और लोगों और लोगों, और लोगों को, ठीक है। और लोगों को आमनू, आमना, आमनू। आमन ईमान ईमान वाले में देखो आमना, ईमान लाए जो लोग आमना वो ईमान लाया, आमनू वो ईमान लाए, आमनू का लाए, इशारा वो ईमान लाए, प्लूरल है। प्लूरल है। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान है। वमा, और फिर माँ भी यहाँ पर नहीं नहीं के आ गया, और नहीं। नहीं यखदाऊना, यखदाऊना ये क्या है? वो सब ना, ये क्या है? वो सब जो मुजारे, धोखा देते, नहीं ये मुदारे धोखा या की मुजारे, वजह से। या कि ये मुजारे है, जमा है, ठीक है। वमा, या और नहीं वो धोखा देते। देखिए यखदाऊना का मतलब होता है वो धोखा धोखा देते देते हैं, और माँ लग गया, और नहीं वो धोखा देते हैं, ठीक है। इल्ला अगर सिवाय ये, अगर ये होगा, ये खादा आ का टेबल है, खादा आ, यखदाऊना। अब ये कौन से बाब से हो सकता है? यखदऊना ये खदा आपने ये ख्याल किया? मुदारे से होगा ना और मुजारे प्लूरल तो में आ है। जाएगा। देखो इसका बाप कौन सा होगा? देखो हमने पढ़े फाताहा, नासारा, दाराबा, अच्छा सामिया। इन चार में से ये नून कौन के से बाद से बैठते? यखदाऊना, आप देख रहे जरा, यखदाऊना। नून के बाद से देखिए नून के बाप से, खदा फतह हाँ, फतहा के बाप से। हाँ जी, फतहा के बाप से हो, फतहा यफ्ताहू, फतहा यखदाऊ, ठीक है। यखदाऊना उसी की जमा है, ये फतहा के बाप से है, ठीक है। इल्ला, इल्ला का क्या मतलब? सिवाय सिवाय। सिवाय वेरी गुड। अनफुसहुम, कितने टुकड़े हम होंगे? दो अल्फाज है, अनफुसा दो है, दो अनफुसा है, हम वो अनफुसा सब और हुम। हाँ, अनफुसा का मतलब होता है नफ्स। अनफुसहुम हाँ, हाँ, अपने नफ्स में नफ्स। नफ्स, हाँ, नफ्स, नफ्स या जान, नफ्स हो, ठीक है। वमा यशउरून, वमा यशउरून क्या मतलब होगा इसका? यशउरून मतलब है इंसारे का है, वमा और नहीं, और और नहीं नहीं, यशउरून का मतलब नहीं पता। यशउरून यशउरून शऊर मुजारे से, है और जमा है। शऊर से निकला है शऊर से निकला है। यशउरून। शाआरा, शाआरा का टेबल है ये, शाआरा यशउरू, शाआरा यशउरू, ये कौन से पैटर्न पे है, कौन से बाब से है? चारों में में मजारे से है। सारे तो है, लेकिन फतहा, नसरा, समिया, नसरा दारबा, नसरा नसरा के बाब से है, ठीक है। शाआरा यशउरू, ठीक है। यशउरून नसरा यंसुरू, शाआरा यशउरू, यंसुरून। जी ठीक जी है। जी। यशउरूना इसका मतलब है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं शऊर, ये भी इसका, ये भी उसी से है, शऊर। यशउरूना वो शऊर रखते हैं, मा यशउरूना वो शऊर नहीं रखते, ठीक है। फी, फी का मतलब क्या है? थी फी, इसमें में, फी का में मतलब है में। में कुलूबिहिम दिलों में, में उनके दिलों में, कुलूबिहिम, कुलूबिहिम कितने टुकड़े होंगे? उनके दिलों में मरज है। कुलूबिहिम दो होंगे। दो होंगे। कुलूब, कुलूब की कुलूब वाहिद है, ये जमा है? ये जमा है, इसकी वाहिद क्या कल्ब होगी? की जमा है। कल्ब की कल्ब जमा कुलूब, फी कुलूबी जी। हिम, ठीक है। दो टुकड़े हैं, कुलूबी, कुलूब दिल, हिम उनके दिल, उनके दिलों में, फी आ गया, उनके दिलों में मरजुन मरज है। मरज क्या होता है? बीमारी, ठीक है। बीमारी आगे है फजादहुम, कितने टुकड़े होंगे फजादहुम के? दो होने चाहिए, कौन से दो होंगे? फजादा और हुम, या तीन करेंगे तो फा अलग हो जाएगा। हाँ, तीन होंगे इसके, फा, ज्यादा, हूँ, ठीक है। फा का मतलब होता है पस,
ज्यादा का मतलब होता है बढ़ा दिया, बढ़ाया, उसने बढ़ाया उनको। आगे है अल्लाह, अल्लाह के ऊपर पेश है तो ये क्या बन गया, फाइल बन गया। फजादहुमुल्लाह, अल्लाह ने बढ़ा दिया है उन्हें, मरजन, किसमें, बीमारी में। बीमारी में। ठीक है, आगे है वालाहुम, कितने टुकड़े होंगे वालाहुम, ये 3 होंगे। और क्या मीनिंग होगा इसका, वालाहुम, वा मीन्स और है, और ला हुम लिए, हुम उनके। और उनके लिए अजाबुल जी अलीम, क्या है, अजाबुल अलीम, अजाब अलीम दोनों इसम है। ठीक है, दर्दनाक अजाब। बीमा कानू यकसिबून, बीमा दो टुकड़े हैं। ठीक है, इससे जो, या क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कानू यकसिबून। अब ये कल वाला जो आप पूछ रहे थे ना जी शायदा, कि हम इसकी कोई एग्जांपल जी जी दिखाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था कि इस जी वाले में आएगा। कानू यकसिबून का क्या ठीक। मतलब होगा, वो झूठ बोला करते थे। कानू अच्छा, यकसिबून, कानू कानू है, यकज़बून। काना, अगर काना यकसिबू, कानू यकसिबून। ठीक है, कानू जी और यकज़िबून, ये इसको हम कहते हैं माजी इस्तमरारी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू बन जाता है, ये जी पास्ट कंटिन्यू का मीनिंग देता है, वो झूठ बोला करते थे, ये इसका मीनिंग है। अभी देखिए माशाल्लाह से आपने सबने इसका तर्जमा किया और आप कर सकते हैं, इसी तरीके से आप बाकियों का भी तर्जमा आप कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने आते हैं, सबसे पहले तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं है वो ईमान वाले। अब देखिए, वाह हरफ है, मिनन नास, मिन मतलब से, अन्नास लोगों, व मिनन नास और लोगों में से, मन यकूलू, मन जो, यकूलू काला यकूलू, काला यकूलू वो कहते हैं, आमन्ना, आमन्ना हम ईमान लाए, हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, हम ईमान लाए अल्लाह पर। आमन्ना बिल्लाहि क्या मतलब है, आमन्ना बिल्लाहि, दोहराए मेरे साथ, ये नया फ्रेज है, इसको हम, इस फिक्रे को हम 2 दफा पढ़ेंगे। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर। हम ईमान लाए अल्लाह, अभी यौमिल आखिरी, बा और, ठीक है, बे यौमी दो टुकड़े हैं, बी अलग है, अल यौम अलग है। ठीक है, अल यौम क्या है, इस समय पहला हरफ है, अल योम तो इस्म होगा ना, अल लग गया। अल लग गया, और अल आखिरी ये क्या है, ये भी इसम है, अल लग गया। अभी यौमिल आखिरी, और आखिर के दिन पर। जी वह माँ, और नहीं, यहाँ माँ का मतलब नहीं है। ठीक है, हम और नहीं है, हम वो, मोमिनीन ईमान वाले, और नहीं है वो ईमान वाले। हाँ देखिए, अभी इसको आप पढ़े एक दफा, इसको तर्जुमा, यानी कि आप इसको ऐसे पढ़े कि आपको समझ के पढ़े इसको। ठीक है, एकदम सब लोग पढ़े इसको। वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूल, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, तो फिर वबिल योमिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हम वमा हम बिमुमिनीन, वमा बिमुमिनीन, हम और नहीं मुमिनीन, है, और नहीं है वो जो बिमुमिनीन ईमान ईमान वाले। वाले। ईमान वाले, वेरी गुड माशाल्लाह। देखिए इस तरीके से हम कितना अच्छे से हमें तर्जुमा ये करना आ गया। अब इसकी इशारा देख लेते हैं। वमिनन नास, अच्छा ये तीसरी किस्म के लोग हैं। इससे पहले हमने 2 किस्म के लोग पढ़े, कौन कौन से हमने इससे पहले 2 किस्म के लोग पढ़े, याद है किसी को? यस सबसे मैम, पहले, काफिर, वो काफिर पढ़े कल के इशारे में, सबसे और पहले इससे हमने पहले क्या पढ़ा, मुत्तकी, मुत्तकी मुत्तकी सबसे पढ़े पहले थे। मुत्तकीन पढ़े, फिर हाँ, काफिरीन पढ़े, और अब अब आज मुनाफिकीन। मुनाफिकीन है। तीसरी किस्म जो है ये मुनाफिकीन है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जुबान से तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन इनके दिल में ईमान नहीं होता। जब कुछ लोगों ने देखा कि मदीना में मुसलमानों की ताकत और कुव्वत बढ़ती ही जा रही है, तो कहने लगे हम मुसलमान हैं, हालांकि वो अपने दिलों में दूसरे प्लान छिपा कर रखते थे।
यानी बज़ाहिर दिखाने को मुसलमान बन गए थे और मुसलमानों के साथ रहते थे, और दिलों में वो अपनी दूसरी जो बातें थी अपने वो छुपाते थे और उसी अपने ही दीन पर होते। तो अब इसको हम एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं है वो ईमान वाले। चलिए इसको कोई और पढ़े, या निगत ने पढ़ लिया, आगे अभी आप कोई और पढ़ ले। मिस कौन पढ़ेगा इसको? हैंड रेज कर लें। चलिए मिस इकरा की आप पढ़िए। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अगली आयत पर। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। तो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, और वो नहीं धोखा दे रहे हैं मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। इसमें भी युखादिऊन अल्लाह, ये हमारे पास जो है न्यू फ्रेज है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं इसका पढ़ूंगी, आप लोग इसका तर्जुमा दोहराएंगे सब लोग मेरे साथ। युखादिऊन अल्लाह, वो वो अल्लाह अल्लाह को को धोखा धोखा देते हैं, देते हैं, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा वो देते अल्लाह हैं, को धोखा देते हैं, अगले फ्रेज पे आते हैं। वमा यखदऊन, और वो नहीं धोखा और दे रहे हैं, वमा यखदऊन और वो और वो नहीं नहीं धोखा दे धोखा रहे दे हैं रहे हैं इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने मगर आप को, अपने आप को, इल्ला अनफुसहुम मगर मगर अपने अपने आप को, आप को, वमा यशउरून, और और वो वो शऊर शऊर नहीं नहीं रखते, रखते, वमा यशउरून। और वो और वो शऊर नहीं शऊर रखते। नहीं रखते। अच्छा, चलिए अब हम वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा इसका देखते हैं, और मेरे ख्याल में ब्रेक कर ले, जानी हो रही, तो इसको जी हम मैम, यस मैम, अजान ब्रेक हो कर चुकी लेते है। हैं, नमाज पढ़ लेती हूँ, और मैं अभी आई हूँ मैम सिविल से। ओके ठीक हो गया, नमाज पढ़ के फिर हम इसको करते हैं। ओके मैम, टाइम लिख ले प्लीज। 35 पर आ जाना, 7:35। ओके। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। ये खादिऊन अल्लाह, तो खादिऊन अल्लाह, खादिऊन ये फिर मुदारे है, जमा है, और ये मजीद फी में से है जो अभी हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। उसका ये है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, जो खादिऊन धोखा देते हैं अल्लाह, अल्लाह को, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लजीन आमन, और अल्लजीना, लजी की जमा है, लजीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, आमनु हमने पढ़ा था, ये भी अगले कोर्स में पढ़ेंगे। आमना, आमनु वो ईमान लाया, वो ईमान लाए, ठीक है। तो यहाँ पर आमनु जमा है और माजी है, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, वा मा, ठीक है, वाह हर्फ है और नहीं हर्फ है, इसका मतलब भी यानी कि है मा का मतलब है नहीं। यखदऊना, अब ये यखदऊना ये दूसरा पैटर्न है, ये जो खादिऊना ये दूसरा पैटर्न है, ठीक है, ये दूसरे बाब से है। ये वाला यखदऊना आप जैसे आपने बताया कि ये फतह के बाब से है, तो ये 3 हरूफ वाला है। तो ये जो है ये मजीद सी है, ये हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। जो खादिऊना, यखदऊना वो धोखा देते हैं, वमा यखदऊना और नहीं वो धोखा देते, इल्ला, इल्ला हर्फ है, इल्ला का मतलब होता है सवाए या मगर। अनफुसहुम, अनफुसा अपना, अपना नफ्स यानी अपने आप, हम अपने आप, अनफुसहुम अपने आप, नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को। वा मा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून,
वा हरफ है, मा हरफ है, मा का मतलब है नहीं, शऊर यशऊरून वो शऊर रखते, यशऊरूना वो शऊर रखते, मा यशऊरूना नहीं वो शऊर रखते। युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनू, अब वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और वो नहीं धोखा दे रहे मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते। युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनू, अब यहाँ पर इसकी शरह क्या बयान की गई है कि मुनाफिक जो थे वो अल्लाह और अल्लाह के मानने वालों को धोखा देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने मानने वालों की हिफाजत करते हैं। अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा वो आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का शूर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको ये लगा हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो उसका शऊर ही नहीं रखते, वो समझते नहीं इस बात को। चलिए इसको हम एक दफा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप तर्जुमा पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए, मैं भी पढ़ूंगी, आप तर्जुमा। युखादिऊन अल्लाह वो वो अल्लाह को अल्लाह धोखा को देते धोखा हैं देते हैं वल्लजीना आमनू, और और इन इन लोगों लोगों को को जो ईमान लाए वमा यखदाऊन, और वो और वो नहीं नहीं धोखा धोखा दे रहे हैं इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, मगर मगर अपने अपने आप आप को, को, और वो और शऊर वो नहीं शऊर रखते। नहीं रखते। चलिए अभी इसको मिस शायदा आप पढ़िए। युखादिऊन अल्लाह, और अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लजीन आमनु, और इन लोगों को जो ईमान लाए, वमा, और नहीं, यखदाऊना, नहीं धोखा दे रहे हैं, इल्ला अनफुसाहुम, मगर अपने आप को, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अगली आयत पे आते हैं। मिस ये यकदाऊना और यकदाऊना दोनों की मीनिंग भी सेम है, तो फिर इसका बाप क्यों अलग है, इसका बाब चेंज अलग, क्यों है ये? हाँ मीनिंग दोनों का सेम है, इसका बाब अलग है। युखादिऊना और यख्ताऊना ऐसे होता है। ऐसे इसमें है कि यहाँ ये जो लफ्ज है ना, युखादिऊना, इसमें होता है कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं या अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा मीनिंग इस तरह आता है, लेकिन इसमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का तो सेम इसका मीनिंग। बाप भी चेंज हो जाता है? बाब चेंजेस, बाब चेंजेस। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, इनके दिलों में बीमारी है, बस बढ़ा दिया इनको अल्लाह ने बीमारी में, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। फी का मतलब है में, हम पढ़ चुके हैं, सिवा में भी पढ़ा था, अभी भी आप लोगों ने बता दिया। कुलूबिहिम, दो टुकड़े हैं, कुलूब कल्ब की जमा है और हिम इस्म ज़मीर है। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरदुन, मरद, मर्ज, उर्दू में मर्ज का लफ्ज बोलते हैं ना, मर्ज बीमारी को कहते हैं, कि दिलों में बीमारी है। फज़ादा हुम, फज़ादा पस, बढ़ा दिया उनको। आप देखिए, फा हरफ है, ज्यादा फेल माजी है, और हम इस्म ज़मीर है, इसमें हरफ भी आ गया, फेल भी आ गया और इस्म भी आ गया। फज़ादहुमुल्लाहु, बस बढ़ा दिया है उनको अल्लाह ने। अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह क्या है, फाइल है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया है मरदन, बीमारी में। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में बीमारी है, बस बढ़ा दिया है उनको अल्लाह ने बीमारी में। वालाहुम, वालाहुम, और उनके लिए अजाबुल अलीम, दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, एक लफ्ज होता है अलीम, अलीम हमजा के साथ अलीम, एक होता है अलीम आइन के साथ, और ये गले से निकलता है अलीम। और अलीम और अलीम को थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनके मीनिंग डिफरेंट है।
अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, और अलीम का मतलब होता है जानने वाला। ठीक है, आलिमा से अलीम, आलिमा जानने वाला, तो ये अलीम जानने वाला। बीमा, क्योंकि कानू यकसिबून, कानू, काना, कानू, काना वो था, पढ़ा था ना हमने, काना वो था, कानू वो सब थे। अब जब कानू वो सब थे, इसके साथ हमने मुजारे का बनाया यकजिबू, यकजिबू, यकजिबूना, वो सब झूठ पास्ट बोलते थे। कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता था। पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो गया, वो सब झूठ बोलते थे। कानू वो सब झूठ बोला करते थे, यहाँ पर किस तरीके से, ये पास्ट कंटिन्यू में आ गया। माजी इस्तेमरारी इसको कहते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू। इसी तरीके से अब हमने काना का जो टेबल पढ़ा था, माजी काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, उसके साथ हम कोई भी हम मुजारे लगाएंगे, किसी भी हम उसमें से बात का मुजारे लगाएंगे तो उसका मीन ये हुआ करेगा, बोला करते थे, किया करते थे, इस तरीके से ये वाला इसको पास्ट कंटिन्यू में इसका मीनिंग आ जाए। दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है, एक शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में इनको शक है क्योंकि वो कुरान पर गौर नहीं करते और ना वो आखिरत की फिक्र करते हैं। और ख्वाहिशात की बीमारी, यानी हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा करना। शक और ख्वाहिशात की बीमारी इंसान को नफाक की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ये था उनका मर्ज, ये उनकी बीमारी थी, एक तो शक की बीमारी थी और दूसरी ख्वाहिशात की बीमारी। अब मुनाफिकों की सजा क्या है, दुनिया में सजा क्या है कि अल्लाह ताला इसको मर्ज में अब ज्यादती, इनके मर्ज को बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो मर्ज क्या था अभी हमने पढ़ा कि ख्वाहिशात का मर्ज, ठीक है, उनको जो ख्वाहिशात और शक का जो मर्ज है अल्लाह ताला इसमें ज्यादती ही करे जा रहे हैं। और आखिरत में सजा इनका क्या है, दर्दनाक अजाब। अब काफिरों का जब हमने पढ़ा था तो उनको उसका हमने पढ़ा बड़ा अजाब, अजाबुल अजीम। काफिरों को अल्लाह ताला आखिरत में अजाबुल अजीम देगा, बड़ा अजाब देगा। और यहाँ पर मुनाफिकों की सजा क्या है, दर्दनाक अजाब। अब कितना दर्दनाक होगा आखिरत में सजा, बहुत ज्यादा। अल्लाह का अजाब बजाते खुद दर्दनाक होगा, इस पर अगर अलीम यानी दर्दनाक अजाब कहा जाए तो तसव्वुर कीजिए कैसा दर्दनाक अजाब होगा। चलिए इसको अभी कौन पढ़ेगा, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा, मिस हैंड रेज करें, फिर मैं देखूं कौन। मिस इकरा के खिलाफ पढ़ चुकी है, कोई और? मिस हवा आप पढ़िए। फी कुलूबिहिम मरज़न, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अजाब है। बिमा, क्योंकि कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब हमने ये जो आयत पढ़ी है इसका तर्जमा देख लेते हैं। ठीक है, आयत नंबर 8 का तर्जमा है, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ईमान लाने वाले नहीं। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके असबाब देखते हैं। इसमें से हमें क्या असबाब, हमने शुरू में भी जिक्र किया था, क्योंकि असबाब के ऊपर हमें थोड़ा सा तवज्जो देनी होती है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, ये हम यहाँ दोबारा दोहराते हैं। ये असबाब में क्या है कि मुनाफिक जो थे उनका बर्ताव बिल्कुल मोमिनों की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकों के दिलों में मर्ज होता है। मुनाफिकों की दुनिया में सजा क्या है, मर्ज पे जाती, और आखिरत में क्या सजा है, दर्दनाक अजाब। और इससे हम फिर दुआ हम करते हैं अल्लाह से, अल्लाह मेरे ईमान में ज्यादती फरमा, नफाक से मेरी हिफाजत फरमा, शुकूक और बुरी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआ, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी, साबित कदम रख मेरे दिल को, अला दीनिका, अपने दीन पर, यानी दीन पर इस पर कमत तफमा, ये साबित कदम रख,
बिल्कुल आसान सी दुआ है, छोटी सी दुआ है और बहुत माशाल्लाह पढ़ी जाने वाली है। आप लोग भी इसको याद कर लें, वो एक दो दफा पढ़े तो आपको याद हो जाए। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दिल पर इस्तिक़ामत अता। और प्लान क्या बनाएंगे कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपने दिल को पाक करूंगा कुरान हदीस के मुताला करके और अच्छे लोगों के साथ रहकर मैं अपने दिल को पाक करूंगा। अब हम इसमें देखते हैं अस्मा और अफ़आल। इसमें फिल यौम हमने पढ़ा, यौम, यौम की जमा क्या है? अय्याम। क्या है यौम की जमा? यौम की अय्याम। अय्याम। नफ्स की जमा क्या है? अनफुस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नफ्स की दो जमा आती है, नफूस भी कहते हैं उर्दू में हम। नफ्स की जमा नफूस भी होती है और अनफुस भी होती है। ठीक है, यहाँ एक ही लिखिए इसकी, ये नफूस भी जमा है। और मरज, मरज की जमा क्या है? अमराज। अमराज। मरज की जमा क्या है? अमराज। एक दफा फिर दोहराते हैं, यौम की जमा क्या है? अय्याम। नफ्स की जमा अय्याम, क्या है? अनफुस, अय्याम। अनफुसुन, अनफुस। नफूसुन, अनफुसुन। हाँ, नफूस भी है और अनफुस भी है। ठीक है। मरज, मरज की जमा क्या है? अमराज, अमराज। अमराज। Good. अच्छा, अब हमें देखते हैं इसके अफ़आल। इसमें से कौन कौन से 3 हरफ वाले सेहतमंद अफ़आल जो कि फातहा, नसरा, ज़राबा और सामिया के पैटर्न पर आए हैं। सबसे पहले जो है खदा, ये कौन पढ़ेगा? तो शायद आप पढ़िए और आपने इसका बाब भी बताना है और आपने इसका रूट वर्ड भी बताना है। और इसका पढ़िए जरा, खदा का टेबल। खदा, यक़दऊ, इक़दा, खादिउन, मक़दूउन, क़िदाउन। ये फतह के बाब से और इसका जो मादा है खा दाल आइन है। इसका क्या मीनिंग क्या होगा? धोखा देना, उसने धोखा दिया। खदा, उसने धोखा दिया। वेरी गुड। चलिए मिस निगहत आप पढ़ेंगी शारा का टेबल। शारा, यशकुरु, उशकुर, शाइर, मशकूरुन, शुऊरुन। लौ के बाब से है और इसकी रूट वर्ड है शीन ऐन रा। और इसका मीनिंग क्या होगा? शऊर। शऊर से निकला है ना? हाँ, वो शऊर। शारा, उसने शऊर रखा। ठीक है। उसने शऊर रखा। अच्छा, नेक्स्ट है तीसरा टेबल ज़ाराबा के बाब से। ये कौन पढ़ेगा? मिस अलीना आप पढ़िए। कज़बा, युक्ज़िबु, इक्ज़िब, काज़िब, मकज़ूब और कज़िब। ज़ाद के उससे निकला है, उसका जो मादा है वो ज़राबा है। ठीक है, ज़ाराबा के टेबल पे है। और इसका रूट वर्ड क्या होगा? मादा क्या होगा? ज़राबा। ज़ाराबा तो बेटा इसका बाब है ना, इसका पैटर्न है, बाब है। बाप, दाल, ज़ाद है मैम, बा। ज़ाद। बाब सौबा। बाब, ज़ाद, बाब, ये सामने लिखा हुआ ना, ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड भी हमें इसके साथ याद रखना। इसकी मीनिंग है इसने झूठ बोला। हाँ, उसको झूठ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हमारा कुरान पाठ कंप्लीट हुआ। अभी हम अब आते हैं अपने ग्रामर। ग्रामर पार्ट में हम आज पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। अब देखिए, इसमें कोई आपको कमजोर हरूफ नजर आ रहा है? अलीफ है अलीफ है और ये बीच में है। ज्यादा अलीफ, सेंटर में। ये बीच में है। अब हम देखते हैं कि अलीफ जो है ये किसकी बदली हुई शक्ल है। या तो ये वाव की बदली हुई शक्ल होगी, या तो ये या की बदली हुई शक्ल होगी। क्योंकि जो अलीफ जब आता है वो या वाव होता है, या वाव की बदली हुई शक्ल होती है, या की बदली हुई शक्ल होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो कमजोर हरूफ होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि अलिफ जो है किसका सहारा बना है। ठीक है, ओके। इस सबक में हम पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, 51 बार ये कुरान पाक में लफ्ज आया है। पहले हम लेते हैं कमजोर हरूफ। कमजोर हरूफ में क्या है? चलिए आप बताएं, कमजोर हरूफ मिस शायद, कमजोर हरूफ क्या है और ये क्यों कमजोर हरूफ? कमजोर हुरूफ इसलिए कि ये वा या और अलीफ है
اور یہ پیٹرن ان کا مخصوص ہے، یعنی نصارہ فتح درابا کے باپ پہ آتے، پہلی بات یہ ہوتی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں یا تو یہ جگہ چینج کر لیتے دوسرے ورڈ کے ساتھ، یا پھر یہ کسی کا سہارا بن جاتے ہیں، ماشاء اللہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. صحیح. اور ٹیم ورک میں یہ کام کرتے ہیں. اور اگر کسی فعل کے اندر ان تینوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل کیا بن جاتا ہے؟ مطلب کمزور فیل کے افعال. اندر کمزور ہو جاتا ہے. کمزور کمزور بن اگر جاتا ہے وہ. اگر جی، کسی تین حروف والے میں کسی تین تین حروف والے افعال تین میں عرفی کسی میں بھی واو یا الف آئے گا تو وہ کمزور حروف کہلائے گا. وہ کمزور افعال کہلائے گا. ٹھیک ہے، وہ کمزور افعال ہو ہاں جائے گا. جی. ٹھیک ہے، کیونکہ کمزور جب بیمار آدمی کی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آوازیں نکالتا ہے، وہ او ای آ اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، تو کیونکہ وہ اس کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو وہ سب کا سبھی پورے جسم اس کا باڈی جو ہے وہ پین کرتی ہے، یہ تکلیف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے اگزامپل دیتے ہیں بار بار تاکہ آپ لوگوں اس کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے. جیسے وہب وعدہ قالا، تینوں میں ایک ایک حرف جو ہے کمزور ہے. جس طرح کسی آدمی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے فعل کے تین میں سے اگر کوئی بھی ایک حرف کمزور ہو جائے تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمزور حروف کے بارے میں ہم نے ہم نے تین باتیں یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اچھا چلیے کون بتائے گا؟ مس علینا آپ بتائیے سب سے پہلی بات کیا ہے کمزور افعال کے سلسلے میں، یاد ہے؟ کوئی اور بتا دیں؟ مس مس شاہدہ نے بتا دیا. مس ہاں جی یہ مس شاہدہ. مس شاہدہ مخصوص آپ پیٹرن بتا پر دو میم. آتے ہیں. ہاں مس نے آپ بتائیے. میم یہ کمزور حروف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بدلی ہوئی حالت میں آتے، واو یا میں آتے نا. نہیں، یہ یہی مخصوص تھا. پیٹرن میں آتے ہیں، نصارہ ہاں فتح چاروں کے پیٹرن درابا پہ کے. آئیں گے. ہاں چار کے پیٹرن پہ آئے گا، ٹیم ورک میں جی کام کرے گا. اور ایک اور دیکھیے بات آپ نے کل بتائی تھی کہ الف باری یا تو باری یا کی باری جگہ پہ آئے گا یا واو کی جگہ. باری باری ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان چار میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، فتح یافتہ ناصرہ یانصر ضربہ یضرب سامیہ یضرب. اچھا ابھی آپ نے دیکھے کہ ابھی ہم جتنے بھی افعال اس میں ہم نے پڑھے ہیں، جیسے ہم نے وہابہ پڑھا، پھر ہم نے اس کے پیٹرن پہ وعدہ پڑھا، پھر ہم نے کالا پڑھا، کانا پڑھا، سب کے سب کیا ہے تو وہ کمزور افعال لیکن انہی پیٹرن میں سے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمزور ہے اس لیے دب جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر بدل جاتے ہیں. جیسے واؤ جو ہے بدل کے الف بن جاتا ہے، کبھی جو ہے واؤ بدل کے یا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یا جو ہے بدل کے الف بن جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک دوسرے کا یہ سہارا بن جاتا ہے، کبھی کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایسے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ انہیں آسانی کے ساتھ بول سکیں. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ تھی کہ کمزور افعال کے متعلق جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر کمزور حرف الف نظر آئے آپ کو تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں واؤ یا ہے، جو بدل کا الف نظر آ رہا ہے. واؤ کی مثال کیسے ہے؟ کالا دعا. ٹھیک ہے، کالا دعا میں جو ہے الف جو نظر آ رہا ہے یہ کیا تھا؟ یہ واؤ ہے، واؤ تھا اور لیکن یہ چینج ہو گیا اور یہ الف بن گیا. یا کی مثال میں قادا زیادہ، آج ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ، تو یہ زیادہ کی جو الف ہے اور قادا جو الف ہے یہ اصل میں یا تھی. ٹھیک ہے، تو آج بھی جو ہم پڑھیں گے زیادہ تو اس میں جو الف ہے وہ یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. ٹھیک ہے، مادہ کے اصلی حروف جیسے کالا ہے، قاف واو لام، یہ اس کے اصلی مادہ کے حروف ہے. ٹھیک ہے، دعا، اب دعا کے جو اصلی مادہ کے حروف ہے دال عین واو ہے، اور زیادہ کے زا یا اور دا، یہ اس کے زیادہ کے حروف ہیں. اگر آپ کو الف جو ہے کمزور فعل کے شروع میں نظر آئے تو وہ نہیں آ سکتا. اگر نظر آئے تو وہ الف نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کو دیکھیں کہ کسی فعل کے شروع میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا، کیونکہ الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور الف اور حمزہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، پیش زبر زیر جزم کچھ بھی ہو تو اس کو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر خالی الف ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے، اب ہم نے یہ فریز پڑھا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، واہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، پالا زیادہ. یہ دعا کرو ہدایت کی.
اب مجھے بتائیے ذرا جو وہابہ کا ٹیبل ہے، وہابہ کی جو ہے وہابہ فاتحہ کے پیٹرن پر ہے، صحیح ہے، اور کالا اور دا یہ ناصرہ کی پیٹرن پر ہے. دارابہ کی پیٹرن پہ کون سا؟ وعدہ، زیادہ، یہ زیادہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہدا ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی مجھے بتائیے اس کی پیٹرن پہ ہم نے اور بھی پڑھے ہیں نا، جیسے وہابہ کے پیٹرن پہ ہم نے ایک اور فعل پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو وہابہ کی پیٹرن پہ؟ وہابہ کی پیٹرن پہ ایک اور ہم نے پڑھا تھا، وہابہ کے وحدہ دا دا واضع، 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 وزع زع واضع، یازع، واضح. زع، بولا زع، زعو، لا تزع، لا تزعو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے کالا کے پیٹرن پہ کون سا پڑھا تھا؟ کالا کے پیٹرن پہ بھی تو ہم نے حروف پڑھا تھا نا، یاد ہے کسی کو کالا کے پیٹرن پہ کون سا پڑھا تھا؟ کالا کے پیٹرن پہ وہ پڑھا تھا. سے پڑھا تھا توبہ پڑھا تھا شاید. کالا کے ٹیبل تابہ پڑھا تھا، صحیح کہہ رہے آپ. کالا کے ٹیبل، کالا کے پیٹرن پہ ہم نے تابہ پڑھا. ویری گڈ. اور دا کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا پڑھا؟ دا کے وہ چکنے کا وہ زوکا زاکا. ذاکا وہ تو ہم نے کانا کے پیٹرن پہ پڑھا تھا. جی کانا کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا نا، کل ہم نے پڑھا تھا نا کانا کا پیٹرن. کانا کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا. دا کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا. رزقہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں وعدہ کے پیٹرن میں ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ وعدہ کے پیٹرن پہ بھی اور پڑھا تھا. آدھا وعدہ، وجدہ پڑھا. واجدہ پڑھا تھا. ویری گڈ. اور آج اسی پیٹرن میں ہم واجدہ. اور اسی زارابہ کے پیٹرن پہ ہی آج ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ. چلیے، اور یہ اس لیے میں آپ کو دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ کے کوئز میں آئیں گے تو پھر پتا ہونا چاہیے نا کون سے پیٹرن پہ ہم نے کیا پڑھا ہوا، تو پھر اسی حساب سے آپ کو اس کے روٹ ورڈ بھی لکھنے ہوتے ہیں، اس میں بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس فریز پہ ایک دفعہ کون پڑھے گا؟ مس نگہت آپ پڑھیے ذرا. وہابا وحدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قالا زیادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا ہادا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. ٹھیک ہے. اب اس سے یہاں سے شروع کریں آپ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. چلیے مس مزنا آپ پڑھیے، آپ ابھی آئیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. گڈ، ماشاء اللہ. اچھا مس آمنہ بھی پڑھنا چاہ رہی ہے. مس آمنہ پڑھیے آپ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا الحمد للہ. اب ہم دیکھتے ہیں زیادہ. زیادہ میں جو کیا ہے، جو الف ہے کمزور حروف بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. زیادہ، اس نے زیادہ کیا. تو قرآن پاک کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ ہدایت میں زیادہ کیا انہیں ہدایت. اب زیادہ کٹے گا. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو سب نے بڑھایا. زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. اچھا یہاں پر جو لفظ ہے زیادہ، زادو، اب یہاں پر آگے جب تیسرے پہ آیا زدتا، اب یہاں پر الف جو ہے غائب ہو گیا. الف کبھی غائب ہو گیا، کبھی چینج ہو گیا. واؤ سے پہلے یا سے چینج ہوا، الف بن گیا. اب یہاں پر آگے زدتا آ گیا، تو یہاں پر گر گیا، یہ نیچے غائب ہو گیا. تو اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ دال اور تا جو ہے دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتا ہے، دونوں کا جو ادا کرنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے، اس لیے ہم دال کو نہیں پڑھتے ڈائریکٹ، ہم تے کو پڑھتے ہیں، تا کو پڑھتے ہیں. زدتا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا. چلیے اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے مس کشف ناز.
زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ مس ہوا حسین، مس ہوا اپنے مائک اوپن کریں جی، شاباش۔ زیادہ اس نے پڑھایا، زادو ان سب نے پڑھایا، زدتا آپ نے پڑھایا، زدتو میں نے پڑھایا، زدتم آپ سب نے پڑھایا، زدنا ہم سب نے پڑھایا، زادت اس عورت نے پڑھایا، پڑھایا نہیں، بڑھایا، بڑھایا بڑھا نہیں دیا، بڑھایا۔ ہاں پڑھایا نہیں، بڑھا دیا، یعنی زیادہ کر دیا، زیادہ بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اوکے چلیے مس مزنا آپ پڑھیے، مس مزنا خبر۔ جی، زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا۔ اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ زدت، زادت، کیونکہ آخر میں ہم نے تے لگانی ہوتی ہے، تا ساکن تا، زادت اس عورت نے اس عورت نے۔ اس چلیے عورت نے بڑھایا۔ مس مریم آصف آپ پڑھیے، آپ لوگ ہینڈ ریس کیوں نہیں کر رہے؟ چلیے مس مریم آصف آپ پڑھیے اس کو۔ اوکے انمیوٹ کیجئے۔ چلیے مس اقرا آپ پڑھ لیجئے، اقرا کی۔ زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔ ویری گڈ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، عربی بول چل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حل زیادہ، ہم اشارہ کریں گے اس کی طرف، حل زیادہ کیا اس نے بڑھایا، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم زیادہ، زیادہ۔ جی ہاں اس نے بڑھایا۔ حل زادو کیا ان سب نے بڑھایا، کیا آنسر ہوگا؟ نعم زادو، جی ہاں ان سب نے بڑھایا۔ ہم سب نے بڑھایا۔ حل زدتا کیا آپ نے بڑھایا؟ نعم زدتو، ہاں میں نے پڑھایا۔ زدتو، جی ہاں میں نے بڑھایا۔ حل زدتم کیا آپ سب نے پڑھایا؟ نعم زدنا، ہاں ہم سب نے پڑھایا۔ جی ہاں ہم سب نے بڑھایا۔ Very good۔ اچھا مجھے بتائیے ذرا، زدتا اس کی جمع کیا ہوگی؟ زد زدتم، زدتم، زدتو، ویری گڈ۔ اور زدنا اس کی واحد کیا ہوگی؟ زدتو، 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 صحیح۔ چلیے اس کی پریکٹس میں کیجیے نے دو بڑھایا، ہم سب نے بڑھایا۔ مس اقرا عقیل آپ کوشچن کیجیے، مس ہوا آپ جواب دیجیے۔ حل زیادہ کیا اس نے بڑھایا، میننگ کے بغیر، نام زادہ، حل زادو نام زادو، حل زدتا، نام زدتو، حل زدتم، نام زدنا، ویری گڈ۔ چلیے الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ کا ٹیبل جو ہے، اس کا مضارع جب ہم بنائیں گے تو مضارع میں سے ان چاروں میں سے ہی کسی کا ایک اسٹائل پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ تو سے تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ کون سے، اب جب اس کا مضارع بنائیں گے تو اس میں دیکھتے ہیں کون سا فاتحہ یافتہ کے باب پہ اگر ہم بناتے تو بنتا یزادو، اگر ناصرہ ینصرو کے باب پہ بنتا تو بنتا یزودو، زارا با یادری بھی پیٹرن پہ اگر بنتا تو بنتا یزید، تو سامنے آپ نے تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ زائدہ نہیں ہے، وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زیر نہیں۔ تو عربوں نے کس کو پسند کیا؟ غارابہ کے بعد تو زیادہ یزیدو کا ٹیبل جو ہے انہوں نے جو الف تھا اس کو یا میں بدل دیا، ٹھیک ہے، زیادہ کا جو الف تھا اس کو میں یا میں بدل دیا، تو اس کو بنا دیا پھر یزیدو، زیادہ یزیدو، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں،
हिया तजीदु, वो मोनस बढ़ाती है। चलिए मिस आमना अरूज आप पढ़िए मुजारे का टेबल। यजीदु वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदु आप बढ़ाते हैं, अजीदु मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं, और मोनस एक खाना खाली है, इसमें भी फिल करना है। हिया 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 तजीदु वो हिया औरत तजीदु, बढ़ाती है। वो और बढ़ाती है। ठीक हो गया। अच्छा आप लोग इशारे जरूर किया करें, सब लोग। एक बेशक कोई एक पढ़ रहा है ना, तो बाकी लोग भी जहां जहां बैठे आप लोग इशारे किया करें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मिस अलीना आप पढ़िए। यजीदु वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदु आप बढ़ाते हैं, अजीदु मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं, हिया तजीदु वो औरत बढ़ाती है। ठीक है। चलिए मिस मुस्ना आप पढ़िए। यजीदु वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदु आप बढ़ाते हैं, अजीदु मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं, हिया तजीदु वो मोनस बढ़ाती है। ठीक हो गया माशाल्लाह। अरबी बोल जा। हल यजीदु क्या वो बढ़ाता है? जवाब क्या होगा? नाम यजीदु हाँ वो नाम बढ़ाता है। यजीदों को बढ़ाता है। हल यजीदूना क्या वो सब बढ़ाते हैं? क्या जवाब होगा? नाम नाम यजीदूना, यजीदुना, जी हाँ वो सब बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं, बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं। हल तजीदु क्या आप बढ़ाते हैं। बढ़ाते? बढ़ाते। नाम अजीदु, नाम जी हाँ मैं अजीदू, बढ़ाता हूँ। जी हाँ मैं बढ़ाता हूँ। हल तजीदूना क्या आप सब बढ़ाते हैं? नाम नाम नजीदू, जी जी हाँ हाँ हम हम सब सब बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। जी माशाल्लाह। चलिए कौन दो लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस? मिस शाहिदा क्वेश्चन करें, मिस निकत आंसर करें। मीनिंग हल के बोले। यजीदू, नाम यजीदु मीनिंग भी बोलने में। नहीं नहीं, मीनिंग के बोले। हल हल यजीदूना, नाम यजीदुना हल हल तजीदू, नाम अजीदु हल तजीदूना। नाम नजीदु। गुड माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका अमर बनाना है। जब अमर बनाने की बारी आती है, हम लेते हैं मुजारे का। मुजारे का हमने यजीदु लिया, सबसे पहले हमने लामत मुजारे को गिरा दिया और आखिरी हर्फ को हमने साकन कर दिया, तो बाकी बच गया जीद। ठीक है। या जो था वो तो वैसे ही कमजोर हर्फ था, वैसे ही गायब हो गया। इतना कमजोर था, हुक्म सुनते ही गायब हो गया, तो बाकी बच गया जिद। जिद बढ़ा। ठीक है, जिद बढ़ा। तो जिद का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जिद, तो बताएगा? मैम सबसे ज्यादा तो रब्बे रब जिदनी इल्मन। अब जिदनी इल्मा, देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आज हमें पता चल गया कि जिद का मतलब क्या है, बढ़ा। तो ये कैसे बना हुआ है, ये तो कौन सी प्रैक्टिस? बढ़ा, हाँ, जिद बढ़ा, जिदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत मत बढ़ा, बढ़ा। चलिए मत बढ़ा। चलिए मिस आमना अरूज पढ़िए, इशारे सब लोग करें। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला ला तजीद तजिद मत मत बढ़ा, बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ा। मत बढ़ा। मिस इकरा की पढ़िए। जिद बढ़ा, जिदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। वेरी गुड। मिस मुजना आप पढ़िए। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ।
چلیے اب ہم پھر اس کی بول چال کرتے ہیں. زد بڑھا, آنسر کیا ہوگا اس کا؟ آزد زیدو. آزیدو میں بڑھاتا ہوں. نگہت آپ کوشچن کریں اور ہوا آپ آنسر کریں. زد زد أزيد زیدو. أزيد نزيد ابھی لا تزد تزد لا أزيد. تم مت بڑھاؤ. لا تزد لا أزيد لا تزیدو. لا نزید, لا أزيد. لا نزید. الحمدللہ. چلیے اب ہم آتے ہیں اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر پر. زائدن, زائد بڑھانے والا, جو زائد بڑھانے والا. مزید, مزید مزید جو بڑھایا گیا. جو اور بڑھایا زیادہ, زیادہ بڑھانا. زیادہ. چلیے اس کو پڑھیں گی مس کا شخص. زائد بڑھانے والا, مزید جو بڑھایا گیا, زیادت بڑھانا. مس علینا یہ. زائد بڑھانے والا, مزید جو بڑھایا گیا, زیادت بڑھانا. اور مس ہوا آپ پڑھیے. زائد پڑھانے والا, مزید جو پڑھایا گیا, زیادت پڑھانا. بڑھانا, بڑھانا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہمارے پاس یہ پورا ٹیبل آ گیا. ٹھیک ہے, پورے ٹیبل کو کون کرے گا؟ مس آمنہ آپ پڑھیے پورا ٹیبل. زیادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, زدنا ہم سب نے بڑھایا, زادت اس عورت نے بڑھایا. یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, یا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. زد بڑھا, زیدو بڑھاؤ, لا تزد مت بڑھا, لا تزیدو مت بڑھاؤ, زائد بڑھانے والا, مزید جو بڑھایا گیا, زیادت بڑھانا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. چلیے الحمدللہ. اب ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے. مس شاہدہ آپ دہرا لیجیے. زیادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زد تو میں نے بڑھایا, زد تم آپ سب نے بڑھایا, زدنا ہم سب نے بڑھایا, زادت اس عورت نے بڑھایا, یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, ہی یا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. زد بڑھا, زیدو بڑھاؤ, لا تزد مت بڑھا, لا تزیدو مت بڑھاؤ, زاہد بڑھانے والا, مزید جو بڑھایا گیا, زیادت بڑھانا. ماشاء اللہ بہت اچھا. چلیے اب افعال کی 6 چابیاں ہیں, اور اس کو ہم یہ پڑھیں گی مس آمنہ عروج. زیادہ اس نے بڑھایا, یزیدو وہ بڑھاتا ہے, زد بڑھا, زائد بڑھانے والا, مزید جو بڑھایا گیا, زیادت بڑھانا. اب یہ دیکھیں زیادہ, اور اس کی جو جتا, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں الف جو ہے یہ غائب ہو گیا. اس کو ڈائریکٹ ہم پڑھیں گے زدتا. اس طریقے سے زد اور زد کی جمع کیا ہے؟ زیدو. اس میں لفظ سے بتایا گیا. چلیے ابھی زیادہ سے اسما کی 3 چابیاں ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. آج ہم نے چیٹ باکس کو دیکھا ہی نہیں. چلیے اسما کی 3 چابیاں کون سے اسما تھی؟ جی مس اقرا, مس اشرف, ناز اور بتا رہی ہیں, صحیح بتا رہی ہیں, شاہدہ بھی صحیح بتا رہی ہیں, سب نے صحیح بتایا. بالکل صحیح ہے, بی آنسر ہے زائد. بس بہت زیادہ اچھا. زیادہ کی طرح ہی قاعدہ کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کی 3 چابیاں مختلف ہیں.
अफाज अफाज कादा का मतलब होता है उसने चाल चली या उसने कोई खुफिया तदबीर की। इसकी अफाल की 3 चाबियां, मिस कशफ, मिस निखत, मिस इकरा की, मिस रुबाब। सब एक ए बता रही है। मिस इकरा ए है, आपने डी लिखा है, ए और आंसर सही। चलते हैं बस आगे, हमारा वर्कबुक का पेज आ गया। अब हमने अच्छे से ज्यादा का टेबल पढ़ लिया, तो अभी जरा इसकी अरबी बनाने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, क्या इसका इसका जरा कोशिश करें आप। चलिए कोशिश करें। फजादु देखो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इसका तर्जुमा करें। सो सो बढ़ा के लिए तो दिया। फा लगेगा सो की में हमने फा पढ़ा, फा जी, फा। फा ना, फजादु कोशिश करें। फजादु। उनको ना वो ज्यादा है। फजादुल्लाहु मारजा, फजादुल्लाहु मारजा। और कोशिश करें। फजादा नहीं, फजादु फज़ादहुमुल्लाहु मरद। वेरी गुड, ये सही बताया मिस इकरा, आपने बिल्कुल सही बताया। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। फजादहुल्लाहु नहीं, फज़ादहुमुल फजादहुमुल्लाहु मरजा। मरज़ा, वेरी गुड, ये सही है। मैम फी मरजा नहीं आएगा, आएगा आएगा ना। फज़ादहुम, फजादहुमुल्लाहु फी मरजा। हाँ फी मरज़, चलो ये भी सही है, फी मरज़ बीमारी में, ठीक है। चलिए आगे है, रब्बी जितनी इल्मा। अब इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करें। रब्बी रब अल्लाह, जिद बड़ा, जिद है बड़ा अमर, जिदनी जिद और नी ज्यादा कर, जिद ज्यादा कर नी मुझे इल्मा इल्मन, इल्म में। इसमें तो इल्म। ठीक है, रब्बे मेरे रब जिदनी इल्मा, बढ़ा दे मेरा इल्म। मेरे इल्म में इजाफा करिए, मेरा इल्म बढ़ा दे। ए रब, ए मेरे रब, रब ए बिना मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब जिद ज्यादा कर नी मुझे इल्मा इल्म में। हाँ ज्यादा कर मुझे इल्म है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हल तजीदु फी इल्म। नाम हल तजीद नाम तजीद फिल इल्मी। नाम अजीदु फिल इल्म, हल नाम अजीदु फी इल्म, बिल्कुल सही, अजीदु फिल इल्मी। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब ज्यादा की तरह ही कादा का टेबल है, जिसने इसका मतलब है उसने खुफिया तदबीर की या उसने चाल चली। ठीक है, चलिए इसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं कौन बनाएगा। कादा कादू कादा कादत कादू कित्ता काता कित्तू किद्तू किदना कादत किद्दत कादतु ऐसे नहीं आएगा। देखो सही बना रही है शायद, आप सही बना रही है। कादा कादू, कित्ता कादू कित्तू, कित्ता कितु किद्दू कितुम किद्तू कितना किदना किद्दत और किद्दत। हाँ, और नहीं यकीदु किद्दत नहीं, कादत जो होगा ना, कादत 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 मोनस का होगा कादत। ठीक है, अभी इसका मुजारे यकादु में यकीदु यकीदु यकीदु, जैसे हमने पढ़ा ना यकीद, यकीदुना हाँ यकीद, हाँ यकीदूना तकीदू अकीदू तकीदु अकीद तकीदूना तकीदुना नकीदु और तकीदु या तकीदु या तकीदू। सही। अब आगे आगे फिर अमर क्या किद बनेगा? किद, किद किद किदु किदु किदू, ला तकीद ला तकीदु ला तकीदू। वेरी गुड। अच्छा, और इसम फाइल क्या बनेगा? काइदुन काइद काइदुन, काइद से और मजीद से बनेगा का मकीद मकीदुन और काइदुन कीदुन, कईदुन या कीदुन, काइदुन, मकीदुन, कईदुन या क्या होगा? काइदुन काइदुन, कयादुन कईदुन। काइदुन, काइदुन चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। काइदुन 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 वर्क बुक जो है अपनी वो साथ साथ कंप्लीट करें, ताकि आप साथ ही काम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की क्लास बहुत अच्छी रही, कंप्लीट हुई।
अल्हम्दुलिल्लाह। आपने होमवर्क आपने जरूर करने हैं, तलावत अच्छा आप लोग जब तलावत करें ना, अभी देख के तलावत रोजाना किया करें, कम से कम यस 5 मिनट मैम। किया करें, और उसमें आप लोग तर्जुमा करने की कोशिश करें। अभी माशाल्लाह हम यस सेकंड लेवल मैम। पर हैं, तो तर्जुमा करने की कोशिश किया करें, और ताकि आपको ये और अच्छा समझ आए। ठीक हो गया। और जो आपकी यस मैम। टेक्स्ट बुक है ना, उसको जरूर पढ़ा करें। जो आपने पढ़ लिया सबक, वो लेसन जरूर उसमें से पढ़ा करें आप, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है। और अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, और अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, और गौर करने करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आमीन सुमा